نماز کا ایک طریقہ ہے، ویسے ہی پڑھو گے تو نماز ہوگی، اور کچھ نہیں، بہت مشکل نہیں ہے۔ 5 منٹ بیٹھ جاؤ کسی اچھے سکھانے والے کے پاس، وہ 5 منٹ میں وضو سکھا دے گا، آدھے گھنٹے میں نماز سکھا دے گا۔ بہت مشکل بھی نہیں ہے، دین آسان ہے، مگر کوئی سیکھو تو صحیح۔ ہم تو مائل بکرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائے کسے راہ روے منزل ہی نہیں۔ میں یہاں اگر ائمہ مساجد ہے تو ان سے گزارش کرتا ہوں، ان کا خادم ہوں، ان کی جوتیاں سیدھی کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہوئے عرض کروں، اپنی قوم کو آدھا گھنٹہ جو بیان کرتے ہو 25 منٹ بیان کرو، اور 5 منٹ میں ان کو کسی ہفتے وضو سکھایا کرو، کسی ہفتے ان کو نماز سکھایا کرو، کسی ہفتے ان کو روزے کے مسائل بتایا کرو، کسی ہفتے ان کو زکوٰۃ کے مسائل بتایا کرو، کسی ہفتے ان کو نکاح اور طلاق کے مسائل، تاکہ ہماری قوم کو ہم ایجوکیٹ کر سکیں، ان کو اسلامی نالج دے سکیں۔ 25 منٹ بیان ہو، 5 منٹ ان کو مسائل سکھا دو۔ پہلے تو ان کو بوریت لگے گی، لیکن دھیرے دھیرے اہمیت کی وجہ سے ان کو سمجھ میں آ جائے گا کہ ہاں یہ دین ہے۔ چلیے ایک مسئلہ میں آپ کو بتاتا ہوں کتنا اہم ہے۔ ہم لوگ نماز شروع کرتے ہیں اور نماز پوری پڑھ لیتے ہیں، لیکن پوری نماز پڑھنے میں ہماری زبان بھی ہلتی نہیں ہے۔ یہ شروع کیا، یعنی یہ دلی دل میں اللہ اکبر کا، دلی دل میں ثنا پڑھا، دلی دل میں سورہ فاتحہ پڑھی، دلی دل میں قل ہو اللہ پڑھی، تو نماز ہوئی ہی نہیں آپ کی۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے ہمیں نماز سوچنے کا حکم نہیں دیا، بلکہ نماز پڑھنے کا حکم دیا۔ تو اب نماز پڑھیں گے کیسے؟ تو جو بھی آپ پڑھیں گے تو کم سے کم آپ کو اتنی آواز سے پڑھنا پڑے گا، اگر اکیلے بھی پڑھ رہے ہیں، کہ آپ کی آواز کم سے کم آپ کے کان میں آنا چاہیے، آپ کے کان میں۔ اتنا زور سے مت پڑھنا کہ بازو والوں کو تکلیف ہو۔ جیسے اگر آپ تحریمہ کہہ رہے ہیں تو اس طرح کہیں آپ، یعنی آپ کی آواز آپ کے کان میں۔ پڑھنے کی تعریف ہی ہے کہ کم سے کم اگر شور شرابہ نہ ہو، کوئی اور چیز نہ ہو، تو آپ کی آواز آپ کے کان میں آنی چاہیے۔ اب بتاؤ ایسے کتنے لوگ پڑھتے تھے؟ اب سبحان ربی العظیم پڑھنا ہے رکوع میں تو بھی منہ بند رہتا ہے، سبحان ربی العظیم پڑھتے رہتے ہو۔ کیوں؟ نماز کیسے ہوگی جب آپ پڑھیں گے ہی نہیں؟ تو صرف دلی دل میں کہتے رہتے ہو۔ تو رکوع میں جاؤ تو سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ، سجدے میں اتنی آواز سے پڑھو کہ آپ کے کان تک آپ کی آواز آنی چاہیے۔ اب یہ سب چیزیں لوگ سننا نہیں چاہتے، بور ہوتے اس میں۔ تو میں اپنے علماء سے گزارش کرتا ہوں کہ لوگوں کی پسند کی بات کرنے کی بجائے ہمیں لوگوں کی ضرورت کی بات کرنا چاہیے۔ کوئی پسند کرے نہ کرے، ہمیں اللہ کی پسند کا خیال رکھنا ہے۔ کوئی تقریر میں نعرہ لگائے نہ لگائے، سبحان اللہ کہے نہ کہے، یہ ان کی مرضی پہ چھوڑ دو۔ ہم اپنا ذمہ پورا کریں، کیونکہ ہمیں مر کر اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا ہے۔ ایک نہ ایک دن ہماری قوم کو سمجھ آئے گی انشاءاللہ۔ اور قرآن کہتے وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، کہ مومنوں کو سمجھاؤ کہ سمجھانے سے ان کو فائدہ ہوتا ہے۔ مومنوں کو نصیحت کرو، نصیحت کرنے سے ان کو فائدہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خوبصورتی دشمنوں کو بھی دی، دوستوں کو بھی دی۔ اللہ تعالیٰ نے علم دشمنوں کو بھی دیا، دوستوں کو بھی دیا۔ اللہ نے دولت دشمنوں کو بھی دیا، دوستوں کو بھی دیا۔ اللہ نے اچھے مکان دشمنوں کو بھی دیا، دوستوں کو بھی دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھیت کھلیان کی کثرت دوستوں کو بھی دیا، دشمنوں کو بھی دیا۔ لیکن ایک نعمت ایسی ہے جو اللہ نے صرف دوستوں کو عطا کیا، پیاروں کو عطا کیا، محبوبوں کو عطا کیا، اور وہ ہے ایمان کی دولت۔ یہ بہت بڑی دولت ہے، اس کی قدر کیجئے، اس لیے کہ جو دولت جتنی بڑی ہوتی ہے اس کو اتنا زیادہ سنبھالا جاتا ہے، اس کی اتنی زیادہ حفاظت کی جاتی ہے۔ ایمان ہی کی وجہ سے اللہ رب العزت کا قرب نصیب ہوتا ہے، ایمان ہی کی وجہ سے عبادتیں قبول ہوتی ہے، ایمان ہی کی وجہ سے اللہ جنت بھی عطا فرمائے گا۔ مگر یہ کوئی آسان چیز نہیں ہے، ایمان کی حفاظت کوئی آسان چیز نہیں ہے۔ جیسے اگر بخار آئے، بیماری ہو اور بخار پر آپ توجہ نہ کریں تو بخار کبھی کبھی موت تک لے جاتا ہے۔ اسی طریقے سے گناہ جب انسان کرتا ہے تو یہ گناہ انسان کو کفر تک لے جاتا ہے۔ گناہ کرنا کفر نہیں ہے، لیکن گناہ پر گناہ، گناہ پر گناہ جب آدمی کثرت سے گناہ کرتا ہے تو اس کا دل کالا ہوتا رہتا ہے، اس کا دل سیاہ ہوتا رہتا ہے، اور گناہوں کی وجہ سے کبھی کبھی انسان کفر تک پہنچتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان گناہوں کی نحوست کو آج سے 1450
साल पहले हमारे दरमियान बयान कर दिया ताकि हम गुनाहों से महफूज रह सके, ताकि हम गुनाहों से रुक सकें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी ईमान के हवाले से और गुनाहों के हवाले से फरमाया, मेरे करीम आका हम सब की सच्चे रसूल सादिक व मज़दूक गैबदा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जैसे काली रात में सियाह बादल छा जाते हैं और उसमें जैसे खंगोर घटाएं छाने के बाद बिल्कुल सर्राटेदार बारिश होती है, जोरदार बारिश होती है, उसी तरीके से मेरे करीम आका फरमाते हैं क़यामत के करीब तुम देखोगे कि मेरी उम्मत पर जैसे बारिश बरसती है वैसे फितनों का नुज़ूल होगा। सुबह नए फितने, दोपहर नए फितने, शाम नए फितने। फितने का मतलब होता है आजमाइश, इम्तिहान, यानी उम्मत को कदम कदम पर इम्तिहान और आजमाइश का सामना होगा। फरमाया ईमान बचाना इतना मुश्किल होगा, हाथों पर अंगारा रखना आसान होगा, ईमान बचाना उससे ज्यादा मुश्किल होगा। यानी कोई बंदा हाथों पर आग को संभाल सकता है, अल्लाह अकबर, हाथों पर आग रखना आसान, ईमान बचाना मुश्किल। कितना मुश्किल होगा ईमान बचाना, बल्कि ईमान बचाना किस कदर मुश्किल हो जाएगा। फरमाया लोग सुबह की हालत में ईमान वाले होंगे, शाम होते होते वो काफिर हो जाएंगे, शाम को ईमान की हालत में करेंगे और सुबह होते होते वो काफिर हो जाएंगे। ये कुफ्र उनके करीब क्यों भटकेगा, वो कुफ्र के दलदल में क्यों फंसेंगे? उसकी वजह बुजुर्गों ने बयान फरमाया, वो गुनाहों के बारे में एहतियात नहीं करेंगे। जैसे इंसान परहेज न करे तो उसकी बीमारियां बढ़ती है, वैसे गुनाहों से न बचे तो इंसान कुफ्र के करीब होता चला जाता है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने क़यामत के करीब के जो गुनाह है उसको भी बयान फरमाया। मेरे और तुम्हारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह अकबर, करीम आका फरमाते हैं कि क़यामत के करीब तुम देखोगे कि उम्मत गुनाह में मुब्तला हो जाएगी। कैसे कैसे वो गुनाह करेंगे? इरशाद फरमाया, हदीस पाक का मफहूम है अमानतें ज़ाय हो जाएगी, यानी लोग अमानतों में खयानत करेंगे। अमानत किसको कहते हैं? किसी दूसरे की चीज जो आपके पास रखी जाती है उसको अमानत कहते हैं। अमानत को आप बदल नहीं सकते, अमानत को आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, अमानत में खयानत होगी। और ये अमानत में खयानत कौन करते हैं? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मोमिन अमानत में खयानत नहीं करता, बल्कि ये मुनाफिक की निशानी है। आका फरमाते हैं मुनाफिक की 3 निशानी है। नंबर 1, जब वो गुफ्तगू करता है तो झूठ बोलता है, अमानत रखी जाती है उसमें खयानत करता है, और जब वो वादा करता है तो वादे को वफा नहीं करता। जरा चेक कीजिए हम मोमिन हैं, कहीं मुनाफिक तो नहीं हो गए। यहाँ मैं मुनाफिक एतिकादी की बात नहीं कर रहा हूँ, मुनाफिक अमली की बात कर रहा हूँ। बताओ कहीं हम मुनाफिक तो नहीं हो गए? अल्लाह अकबर, जब बोलते हैं तो झूठ बोलते हैं। अब तो झूठ बोलना लोगों को गुनाह भी नहीं लगता, अब लोगों को झूठ बोलने से कोई परहेज नहीं है। झूठ बोलना फैशन है, जबकि मजाक में भी झूठ बोलना हराम है, जानवरों से भी झूठ बोलना हराम है। अब आप कहेंगे जानवर से झूठ कैसे बोलते हैं? मिसाल के तौर पे आपके हाथ में रोटी नहीं है और आपने हाथ बंद करके जानवर को खाली हाथ बंद करके धोखा दिया, बुलाया आ आ आ और जानवर आ गया, तो ये जानवर के साथ झूठ हुआ। ये भी बोलना जायज नहीं है। एक बुजुर्ग एक मुहद्दिस के पास हदीस सुनने के लिए गए तो वो जानवर को बुला रहे थे, उनके हाथ को उन्होंने खोल के देखा तो उनके हाथ के अंदर जो है अल्लाह अकबर कुछ नहीं था। उन्होंने फरमाया तुम जानवर से झूठ बोलते हो, मैं तुमसे हदीस नहीं सुन सकता, मैं तुमसे तुम्हारी गुफ्तगू नहीं सुन सकता। अल्लाह अकबर, जरा गौर तो कीजिए, जो मजहब जानवरों से झूठ बोलने को मना करता हो, जो मजहब बच्चों से झूठ बोलने को मना करता हो, जो मजहब अल्लाह अकबर मखलूक खुदा से झूठ बोलने को मना करता हो और ये मुनाफिक की निशानी करार देता हो, आज उस मजहब के मानने वाले अल्लाह की बारगाह में झूठ बोल रहे हैं। आज उस मजहब के मानने वाले रसूलुल्लाह की बारगाह में झूठ बोल रहे हैं। मैं तो हैरान हूं, अल्लाह अकबर, फिरौन भी होता तो हमारी इन हरकतों पे सर पकड़ लेता, नमरूद भी होता तो हैरान रह जाता कि लोग कुत्ते बिल्ली से झूठ बोलने के लिए मना किए गए, हम अल्लाह की बारगाह में झूठ बोल रहे हैं, हम रसूलुल्लाह की बारगाह में झूठ बोल रहे हैं। आप कहेंगे सैयद हम अल्लाह रसूल की बारगाह में कैसे झूठ बोले? मैंने कहा कहते हो अल्लाह के नाम पे जान कुर्बान कर देंगे, मर जाएंगे, घर लुटा देंगे, ये सब मुसलमान कहते हैं। 10 मिनट फजर की नींद कुर्बान नहीं कर सकते? हम अल्लाह की बारगाह में जान कुर्बान करने की बात करते हैं और 10 मिनट की नींद कुर्बान नहीं करते। 3-3 घंटा हम गेम के नाम पे कुर्बानी दे सकते हैं, 10 मिनट की नींद
फजर की नमाज के लिए हम कुर्बानी नहीं दे। हम रसूलुल्लाह के बारे में कहते या रसूल अल्लाह हम जान से ज्यादा आपको प्यार करते हैं। जब हुजूर से जान से ज्यादा प्यार करते हो तो तुम्हारे मोबाइल की स्क्रीन पर हीरो की तस्वीर कैसे है बताइए। यानी हम किस कदर दीन से दूर हो गए। हमारे पास अमानतों की कोई अहमियत नहीं। अरे अमानत तो अमानत है। लोग बहनों का हिस्सा खा जाते हैं, लोग भाइयों का हिस्सा खा जाते हैं। आपके सलाया का माहौल या गिरद नवा का क्या माहौल है मुझे नहीं पता, लेकिन बाप के मरने के बाद भाई सारा हिस्सा हड़प कर लेता है, बहनों को नहीं देता। अगर कोई भाई थोड़ा ताकतवर है दूसरे भाइयों को लड़ते रहता है, उनको धमकियां देते रहता है। याद रखना अगर भाइयों की बहनों की 1 इंच जमीन हमने हड़प कर ली, 1 इंच को कहते हैं 1 इंच, तो क्या होगा। अल्लाह के रसूल फरमाते क़यामत के दिन वो 1 इंच जमीन पूरी काट के नीचे तहतुस्सरा तक काट कर वो निकाली जाएगी और तुम्हारे गले में डाली जाएगी। और जब तक लोगों का हिसाब होता रहेगा वो तुम्हारे गले में रहेगी। 1 इंच जमीन अगर 7 तबक नीचे तक काटी जाएगी तो कितनी वजनी होगी। ये जो हार मुझे पहनाया गया मैं मुश्किल तमाम 1-1.25 किलो का होगा, लेकिन मैं इसको देर तक पहने नहीं रहा। मैं पहन के तकरीर नहीं कर सकता इसको, क्यों? इसलिए कि इसका वजन मुझसे उठाया नहीं गया। अंदाजा करें 1-1.5 किलो का वजन घंटे भर की तकरीर में मैं नहीं पहन सकता। वो लाखों किलो के वजन की मट्टी अल्लाह अकबर जब हिस्सा गसब करने की वजह से, हक गसब करने की वजह से गलों के अंदर डाली जाएगी। और क़यामत का दिन कितना बड़ा दिन है, 50,000 साल का एक दिन है। उस दिन के अंदर और हमने तो 1 इंच जगह नहीं हड़प की है बल्कि पूरे हिस्से बहनों के हड़प कर लिए, भाइयों के हड़प कर लिए। घर बनाने गए तो पड़ोसी की जमीन पे कब्जा कर लिया। याद रखना ये दुनिया में कितनी भी दादागिरी और गुंडागर्दी कर लो, लेकिन अल्लाह के यहाँ न किसी की गुंडागर्दी चलेगी, न किसी की दादागिरी चलेगी, न किसी की बाबागिरी चलेगी। वो अल्लाह अल्लाह है, उसके यहाँ तो अदल है, अदल उसके यहाँ तो इंसाफ है। अल्लाह अकबर। अगर नबी का बेटा भी कसूरवार होगा अल्लाह उसको भी जहन्नम के अंदर डाल देगा नूह अलैहिस्सलाम के बेटे की शक्ल में। और अगर कुत्ते पर प्यार आ जाए तो कुत्ते को दूल्हा बनाकर जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा। उसके यहाँ जरा गौर फरमाए। इसलिए मुसलमान हो, मुसलमानों के अंदाज में जिंदगी गुजारो। तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं क़यामत के करीब अमानतों को ज़ाय किया जाएगा। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत की एक निशानी और बयान फरमाई। मेरे और तुम्हारे रसूल फरमाते हैं क़यामत के करीब औरतें कपड़े पहनकर भी नंगी घूमेगी। अल्लाह अकबर। हैरानी होती है कि कोई कपड़ा पहने तो नंगा कैसे रहे और कोई नंगा रहे तो कपड़ा कैसे पहने। तो बुजुर्गों ने निशानी बयान फरमाई, कपड़े पहनकर औरतों के नंगा रहने का मतलब ये है कि औरतें इतने पतले पतले और बारीक बारीक लिबास पहनेगी, ऐसे तंग और चुस्त लिबास, फिटिंग में लिबास पहनेगी कि कपड़े पहनने के बाद भी उनका बदन नजर आएगा। औरतों के कपड़े पतले नहीं होना चाहिए। बुजुर्गों ने फरमाया जो औरत बेहयाई की वजह से जितने पतले कपड़े पहनेगी उसका ईमान उतना कमजोर होगा, और जो जितने मोटे कपड़े पहनेगी हया की वजह से उसका ईमान उतना मजबूत होगा। घर जाके जरा चेक करना, आपकी बीवी, हमारी बहनें, हमारी बेटियां, हमारी माएं, इनके कपड़े कैसे हैं। मर्दों के कपड़े तो हमें जो है वो मोटे मिलते हैं, लेकिन औरतों के कपड़े मोटे नहीं मिलते। आप जानते हैं जो औरतें पतले कपड़े पहनती है आसमान से लानत बरसती है। जो औरतें कपड़े इतने पतले पहनती है कि उससे उनका बदन की रंगत झलकती है, नजर आती है, उस घर में रहमत के फरिश्ते नाजिल नहीं होते, रहमत के फरिश्ते उस घर से निकल जाते हैं। सलाया वालों, गिरद नवासी आने वालों, अब मैं तुमसे पूछता हूं, तुम कहते हो बापू हमारे घर में बरकत क्यों नहीं है। मेरे भाई जब तेरी बेटी पतले कपड़े पहने हुई है, तेरी बहन पतले कपड़े पहने हुई है, तेरी माँ पतले कपड़े पहने हुई है, तो घर में रहमत के फरिश्ते नहीं आएंगे। ये किसने कहा? बापू ने नहीं कहा, ये बापुओं के दादा मुस्तफा जाने रहमत ने फरमाया, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, हुजूर ने कह दिया रहमत के फरिश्ते नहीं आएंगे तो फिर नहीं आएंगे। अल्लाह के बंदो, रहमत के फरिश्ते बेहयाई की जगह नहीं आते। अल्लाह अकबर। उनको बड़ी हया है, रहमत के फरिश्ते हयादार हैं। अल्लाह अकबर। एक तो पतले कपड़े, दूसरे आजकल फैशन निकल पड़ा है, छोटी आस्तीन
फलस्तीन के कपड़े, मैं नहीं जानता किसके घर का माहौल क्या है, लेकिन रसूलुल्लाह ने जो फरमाया, बहनें भी यहाँ हजारों की तादाद में बैठी हुई है, मैं अपनी माँ और बहनों से कहता हूँ, खुदा की लानत से तुमको डर नहीं लगता, खुदा के अजाब से तुमको डर नहीं लगता, खुदा से तुम्हें डर नहीं लगता? जब उसने कह दिया महबूब के जरिए से कि पतले कपड़े पहनने वाली औरतें, बेपर्दा घूमने वाली औरतें, उन पर जहन्नम का सख्त तरीन अजाब होगा। कौन औरत है जो अल्लाह के अजाब को बर्दाश्त कर सके, जो खुदा के गजब को बर्दाश्त कर सके? मुझे तो हैरत है, अहले बैत की मोहब्बत का दावा है, फिर भी पतले कपड़े कैसे हैं? मुझे हैरत है, सैयदा की मोहब्बत का दावा है, सैयदा के बच्चों की मोहब्बत का दावा है, फिर भी घरों में पतले कपड़े पे कैसे हैं? क्या सैयदा ने कभी पतले कपड़े पहने? अस्तगफिरुल्लाह, अलयाज़ु बिल्लाह। कायनात में वो खातून ऐसी है जिस पर हम फख्र करते, फख्र, और पूरा इस्लाम फख्र करता है कि अल्लाहु अकबर, किसी नबी के घर में, किसी वली के घर में, किसी सहाबी के घर में, आसमान के नीचे, जमीन के ऊपर ऐसी खातून पैदा नहीं हुई जैसी शहजादी अल्लाह ने मुस्तफा जाने रहमत को अता फरमाई है। रसूलुल्लाह की शहजादी की शान ये है, उनके सर के बाल को कभी किसी मर्द ने नहीं देखा। मैं सलाया में बैठकर चैलेंज के साथ कह रहा हूँ, सैयदा के बालों को कभी किसी मर्द ने नहीं देखा। अरे मर्द तो मर्द है और बाल तो बाल है। सैयदा फातिमा की गैरत का आलम यह है कि उनके सर के दुपट्टे को कभी चांद और सूरज ने भी नहीं देखा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, अजमते मां फातिमतुज ज़हरा, रिफाते मां फातिमतुज ज़हरा, चादरे मां फातिमतुज ज़हरा। सैयदा के दुपट्टे को भी कभी चांद और चांद सूरज की बात, मैं अपनी गुफ्तगू का जिम्मेदार हूं, जिसको बात करना है मुझसे करे। चांद और सूरज ने भी सैयदा के दुपट्टे को नहीं देखा, चादर को नहीं देखा। मेरे इमाम कहते हैं, जिसका आंचल न देखा मओ महर ने, आंचल दुपट्टे को कहते हैं, आंचल दुपट्टे को कहते हैं, जिसका आंचल न देखा मओ महर ने। माह कहते हैं चांद को, महर कहते हैं, सुनते हैं कि सैयद वो तो रसूलुल्लाह की औलाद में से। तो मैंने कहा क्या हुजूर की और औलादे नहीं है? सारी औलादे नबी की सराखों पर है, लेकिन ये शरफ सैयदा ही को, क्योंकि पूरे महशर की गर्दन ये सैयदा फातिमा का तकवा है। तकवा, हुजूर की हर औलाद मुत्तकी थी, और इतनी मुत्तकी थी कि आज तक उनके तकवे की नालैन को भी कोई पहुंच नहीं सकता। लेकिन सैयदा फिर सैयदा है, सैयदा सैयदा है, सैयदा ही सैयदा है, सैयदा सिर्फ सैयदा है, सैयदा सैयदा है, जिसकी शान ये है, तकवे का आलम ये है कि सर के दुपट्टे को चांद और सूरज ने, जब उन्होंने इतना तकवा इख्तियार किया कि चांद और सूरज से भी दुपट्टा बचाया, तो कुदरत ने कहा दुनिया में तूने बचाया, और क़यामत में फिर हम तेरी शान बयान करेंगे। आप देखिए, ये सैयदा फातिमा के तकवे की बरकत है कि आज पूरी दुनिया में जितने वली सबसे ज्यादा किसी माँ की कोख से पैदा हुए, वो सैयदा फातिमतुज ज़हरा है। आप पूरी दुनिया में घूमिए, मैं किसी को की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन पूरी दुनिया में घूमिए और सारी माओं के शजरे चेक कीजिए, है किसी माँ की औलाद में इतने बेटे जो वली हुए? बल्कि वलियों के सरदार जिसमें है वो सैयदा फातिमा की औलाद है। मैं क्या क्या नाम गिनाऊं, अगर उर्स का मौका है, जिनको पता है उनको पता है, जिनको नहीं पता मैं आपको बताऊं। उम्मत का पहला गौसे आजम, खिलाफत राशिदा के बाद उम्मत का पहला गौसे आजम जिस माँ का बेटा है उसे सैयदा फातिमा कहते हैं। मैं सलाया वालों को ये नहीं कहूंगा कि मेरी हर दो जुमले पे सुभान अल्लाह कहे, मैं ऐसा आदमी नहीं हूं। ये हक अल्लामा अय्यूब को हासिल है, इरफान बापू को, ज़ीशान बरकाती को हासिल है। मैं तो तुम्हारे इश्क का इम्तिहान देखना चाहता हूँ कि कितनी बड़ी बात मैंने कही। ये बात अगर मैं सूफियों की महफिल में कहता तो वो उठ के रक्स करते, हाँ, इसलिए कि ये बात है कीमती। मगर मैं तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, औलादे अली, औलादे फातिमतुज ज़हरा। आखिर किसी माँ से कोई गौस पैदा नहीं हुआ सिवाय सैयदा फातिमा। वजह
کیونکہ غوث کے لیے ایسی متقی ماں چاہیے تھے، اور کیسی متقی ماں جس کے دوپٹے کو کبھی چاند و سورج نے نہیں۔ آج مائیں چاہتی ہیں آپ کے یہاں میرے یہاں تو غوث پیدا ہوئی، اب تو غوث پیدا ہی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ غوث اعظم جو 11ویں ہیں وہ شیخ عبد القادر جیلانی، اب 12ویں حضرت امام مہدی ہے، بس 12 پہ ختم ہے قصہ 12 پہ ختم، خلافت راشدہ کے بعد گنا رہا ہوں میں، قصہ ختم ہے۔ پھر ہمارے یہاں کوئی غوث کتب تو پیدا نہیں ہو سکتا، لیکن کم سے کم نیک بچے تو پیدا ہو سکتے ہیں۔ لیکن یہ نیک بچے پیدا کیسے ہوں گے؟ صرف جلسہ سننے سے نہیں، جب تک ماؤں کے اندر حیا پیدا نہ ہو۔ ماں ولیمے میں بے پردہ چلی، شادیوں میں بے پردہ چلی، پیروں کے سامنے بے پردہ آئے، اماموں کے سامنے بے پردہ آئے، بارات میں بے پردہ آئے۔ آپ کیا کہتے ہو؟ بابا آپ تو ہمارے باپ جیسے ہو۔ میں نے کہا رسول اللہ سے بڑا کوئی امت کا باپ ہے؟